Hello students, welcome to the next lecture on the partial differential equation. Today I will explain you how you can find the particular integral when it is particularly of cosine or sine functions. I will explain you with the help of the 10 plus numerical examples. Myself Dr. Harishkar, you can follow and subscribe my YouTube channel where you can find the playlist of the partial differential equations. जैसा कि आप देख पा रहे हो homogeneous linear partial differential particular the general idea behind the particular integrals, type 1 problems and many more lecture are available in this playlist. So as I have shown you, we have already covered in our last lecture. You can see this is the playlist and the type 1 exponential form is already covered. In this today's lecture, I will explain you how you can find the particular integral when the function is cosine or the sine function. For example, here. तो आज के लेक्चर में ये सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे और इतने ही क्वेश्चन मैं आपको एज एन एक्सरसाइज देके जाऊंगा एट द एंड ऑफ द वीडियो. But make sure whenever you want to apply the type 2, make sure the angle, whatsoever the angle of the sine and cosine, it must be of the ax plus by. That means the degree of x and y must be 1. Like in this case, the degree is my 2. तो आज का मेथड इस पे एप्लीकेबल नहीं होगा. Similarly, you can see x square. You can never apply the today's lecture on this problem. तो आप कैसे निकालोगे? एंड सेकंड कंडीशन इज आप सबका ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम. जैसे इसका ऑर्डर कितना है? 2, बट द ऑर्डर ऑफ द डी इज माई 1, तो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है. ऑर्डर इज माई 2, डी इंटू डी डैश, अगेन द ऑर्डर इज 2, again the order is 2, so each term has the same order. Yes, you can apply the today's method. Once you have satisfied these two conditions, then we can find we can find the general solution of any partial differential equation is u is complementary functions plus particular integral. We already discussed the complementary functions in our previous lectures, like as you can see the complementary functions and the particular integral of the homogeneous part. If I quickly recall you, you can find the particular integral is 1 over f d of d dash phi in this case is the right hand side of the partial differential equation. We consider that two cases. Once f of a comma b is non-zero and second is f of a comma b is 0. What is the a and b? If you consider the sine function, then the coefficient of the x is my a, coefficient of the y is my b. अगर ये non-zero है, then you can find the particular integral by substituting d is equal to a and d prime is equal to b. तो आपका न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा f of ab, मैं यहाँ पे फिल कर रहा हूँ यहाँ पे. फाइन. एंड जो भी आपके पास साइन और कोसाइन फंक्शन है उसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी. फाइन. एंड टेकन v इज इक्वल टू ax प्लस, मैं इसको न्यूमेरिकल एग्जांपल से भी समझा देता हूँ आपको. फाइन. दैट इज क्वाइट इजी फॉर यू. And whenever it's a 0, then in that case we call as the case of the failure. Fine. So जब भी case of failure होगा, then we can apply the formula is x raised to power n, b raised to power n, b is the coefficient of the d and factorial. Fine. तो अभी आपको ये लग रहा होगा कि ये काफी कॉम्प्लेक्स है, पर जैसे मैं आपको 10 प्लस एग्जाम्पल इस लेक्चर में दिखाऊंगा तो आप 2 मिनट के अंदर हर क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे. फाइन. So let's start with the 10 plus numerical example. First of all, what is the R? We all know R is my del square U divided by del X square. S is my del square U divided by del X del Y. And T will be del square U divided by del Y square. I can write in the terms of the D, it's a D square U. It's a X and Y both. So it's a D and D dash. Fine. यहाँ y की पावर 2 है, so that is a d dash of u. Make sure capital D is my operator with respect to x and d prime is the operator with respect to y. So that equation becomes d square minus 2 into d dash plus d dash square. मैं सभी में से u कॉमन निकाल दे रहा हूँ. Fine. Which is sine of 2x plus 3y. How you can find the complementary functions? Fine, you can write as the auxiliary equation. What is the auxiliary equation? You can substitute d is equal to m, d dash is my 1. So equation becomes m square
minus 2m plus 1 is equal to 0. So once you can solve them, you will get the answer is 1 comma 1. Therefore, complementary function will be f1 y plus 1x plus, because it's a repetition, so you can multiply with the x, y plus 1x, where f1 and f2 are my arbitrary functions. क्लियर? नाउ अब क्वेश्चन ये है कि पर्टिकुलर इंटरवल निकालना आपका। अब उसमें भी केस ऑफ फेलियर होगा कि नहीं, वो मैं आपको एक आसान ट्रिक्स बता दे रहा हूं, जैसा मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है। चेक वेदर 2x plus 3y appears in the complementary function or not। क्या 2x plus 3y यहां लिखा हुआ कहीं पे? नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब केस ऑफ फेलियर नहीं होगा। फाइन, देन यू कैन सिंपली टेक v is equal to 2x plus 3y। फाइन, और कैपिटल डी कितना होगा? कोफिशिएंट ऑफ द x, कैपिटल डी डैश इज माय कोफिशिएंट ऑफ द y। तो आप यहाँ पे फिल कर दो, तो ये कितना हो गया? 2 minus 3 स्क्वायर, और ये कितना हो गया आपका? साइन ऑफ v। बट यू हैव टू टेक, इसका ऑर्डर कितना है डिफरेंशियल इक्वेशन का? आप देख सकते हो 2 है ना मैक्सिमम। फाइन, तो यू हैव टू टेक 2 times इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dv, एंड दैट्स द आंसर ऑफ द पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो ये कितना हो गया? 1 साइन की 2 बार इंटीग्रेशन करोगे, फर्स्ट टाइम इज अ माइनस ऑफ कोस v एंड सेकंड टाइम इज माइनस ऑफ साइन v, सो द आंसर इज माइनस साइन ऑफ v। I can substitute the value of the v, you will get minus sine of 2x plus 3y. You can add complementary function plus particular integral is the required journal solution of the problem. समझ गए? अब जो बाकी एग्जांपल्स है, आप इसको 2-2 मिनट में सॉल्व करते हैं विद द सेम अप्रोच। नाउ लुक एट दैट, सबका ऑर्डर सेम है ना, 3 3 3 और ax plus b की फॉर्म में है। सो यू कैन राइट फर्स्टली ऑक्सिलरी इक्वेशन। कितना आ जाएगा? m क्यूब minus 4m square plus 4m is equal to 0. You can take an m as a common, m square minus 4m plus 4 is equal to 0. क्या अंदर क्वाड्रेटिक के फैक्टर बढ़ा सकते हो आप? Yes, you can do m minus 2 whole square. So that means your m will be 0, 2 and 2 are the roots of the auxiliary equation. Therefore, your complementary function will be f1, first one is a 0, so y plus 0x plus f2 y plus 2x, and because 2 and 2 are my repeating, so you can add x times f3 y plus 2x, and clearly say the order is also 3 and there are the 3 arbitrary functions. Now look at the pi. Check whether 2x plus 3y appears anywhere in this complementary function. No. So that means you can substitute d is equal to 3, d prime is equal to 2, and v is equal to 3x plus 2y. तो ये कितना बन जाएगा आपका आंसर? d is my 3, 3 minus 2 into 2, 4 whole square into 2 times sine of v. The order is my 3, you have to integrate 3 times. तो ये कितना हो गया? minus 1 का square is plus 1, that is 1 over 3, 2 is my outside. Now you can put the 3 times integration of the sine v. पहली बार इंटीग्रेशन करोगे, that will be minus cos v. Second time करोगे, cos will be sine v, and next time करोगे, it's a plus of cos v. So I can substitute the value of the v as 3x plus 2y is the right answer of the problem. दोनों को ऐड कर दो, you will get the journal solution. Look at the next one. सबसे पहले देखो, ये तो आपका डिग्री सेम है, बट यहां पे आपके पास ax प्लस by की फॉर्म में नहीं है। फाइन, तो आज का लेक्चर अप्लाई नहीं होगा ना इस पे, बट अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दूं, देन इट विल बी 2 cos a cos b, यही बन जाएगा ना। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द 2 cos a cos b? इज अ cos a plus b plus cos a minus b. I can apply that. अब आप देखो 2x plus y is a linear, ax plus by, ये भी आपका ax plus by है। चलिए ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालो आप इसकी पहले। m square plus 1 is equal to 0, so your m will be plus minus iota. फाइन, तो आपका सॉल्यूशन क्या बन गया? सॉल्यूशन विल बी complementary function f1 y
plus iota x and plus f2y minus iota x, where f1 and f2 are my arbitrary functions. As the order is my 2, so there are the two arbitrary functions. चलिए पी आई निकालते हैं. पी आई में राइट हैंड साइड पे आपके दो फंक्शन है, सो आई कैन टेकन ऑन द बोथ साइड. सबसे पहले पहली वाली टर्म को देखते हैं. क्या 2x प्लस वाई इसके अंदर है कंप्लीमेंट्री फंक्शन में? नहीं है. तो आप इस केस में क्या सब्स्टिट्यूशन करोगे? यू कैन टेकन d इज माई 2, d प्राइम इज माई 1. तो ये कितना हो गया? 4 प्लस 1 इज 5. दैट विल बी माई कोस ऑफ v, और ऑर्डर 2 है तो इसका 2 टाइम्स इंटीग्रेशन. सिमिलरली यहाँ पे इस केस में आप d को 2 लेंगे, d प्राइम विल बी माई -1. तो ये कितना हो गया? 4 प्लस 1 5 इज अ कोस ऑफ v ऑलरेडी ले चुका हूं, लेट्स से p ले लेते हैं. अगेन द ऑर्डर इज 2, डबल इंटीग्रेशन ऑफ द कोस p. तो कर दो, इसका आंसर है 1/5 कॉमन ले लेता हूं, दैट्स 1/10 कोस का इंटीग्रेशन साइन, फाइन, एंड साइन का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ cos v. So that is a minus of cos v and it's a minus of cos p. I can substitute the value of the v and p, then we will get the required particular integral. Fine. So you can complement the functions plus particular integral is the required complete solution of the problem. Or otherwise यहाँ पे आप रिवर्स कर सकते हो ना, cos a plus b cos a minus b, that will be 2 cos a cos b. तो यहाँ पे 2x आपका a हो गया और b आपका y आपका b हो गया. चलिए look at the next one. Again you can see the order is my 3 सबका और ax plus by है. Can you write the auxiliary equation? m cube minus 4m square plus 4m which is 0. I can take an m is common. ये तो सेम बन गया ना पिछला ही. फाइन. और ये क्वेश्चन ही सेम है, सिर्फ यहाँ पे राइट हैंड साइड चेंज है आपके पास. तो आपका कंप्लीमेंट्री फंक्शन तो सेम हो गया जिससे पहले निकाला. नाउ फॉर द फाइंडिंग द पी आई, चेक वेदर द 2x प्लस वाई अपीयर्स. यस, 2x प्लस वाई अपीयर्स है. क्लियर? तो ये किसके टर्म के कोरस्पोंडिंग आएगा? अगर मैं यहाँ पे d की वैल्यू 2, d डैश इज माई 1, तो कौन सी चीज जीरो बन रही है? ये चीज. ये तो नहीं बनेगी ना जीरो, ये पहली वाली चीज तो नहीं जीरो बनी. तो यहाँ पे आप इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं जो जीरो नहीं बनेगी. नाउ अब आप सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकते, सब्स्टिट्यूशन करना होगा तो सबको एक साथ करना होगा. व्हाट इज दैट? d इज माय पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x. सो व्हाट इज द 1/d? दैट्स माय इंटीग्रेशन. तो मैं इस वाले जो बाहर वाला d है इसको क्या कर सकता हूं मैं? ये चीज तो मैंने ऐसे लिख दी. फाइन. इस बाहर वाले d को क्या कर देता हूं? इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि d की वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू x है ना आपके पास. सो कीपिंग y एज माई कांस्टेंट. फाइन. तो करो इसका है, ये तो ऐसा रह गया -4 साइन 2x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 2. यही आएगा ना इंटीग्रेशन, और ये आपकी चीज ऐसा रहेगी. क्लियर? नाउ यू कैन सी -2 यू कैन टेकन एज आउटसाइड. इफ यू सब्स्टिट्यूट अगेन 2x प्लस वाई है तो ये आपके पास क्या हो गया? केस ऑफ फेलियर. फाइन. जब केस ऑफ फेलियर है तो हाउ यू कैन राइट दैट? इट्स वेरी वेरी सिंपल. फाइन. पहले इसका क्या लिखेंगे? x पावर ये कितनी है? 2 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल. कोफिशिएंट ऑफ द d इज 1 पावर 2. बाकी जो एक्सप्रेशन बच गया वो एज सच आपका एज सच ही रह जाएगा. यहाँ पे लॉग हो, साइन हो, कोसाइन हो, जो भी है वो एज सच ही रह जाएगा बाय यूजिंग दी फॉर्मूला. ठीक है, ऐसे लिखवाया ना मैंने. x की पावर n, जो x की पावर है, पावर इज माई 2 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, और कोफिशिएंट ऑफ द d इज माई 1 रेज़ टू पावर 2, एंड ये माइनस ऑफ 2 आपका एज सच रह गया. फाइन. नाउ दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, पार्टिकुलर इंटीग्रल, यू कैन ऐड देम एंड गेट द राइट आंसर. Look at the next one. So it's a ax plus b, fine. It's again the ax plus b, fine. और सबका ऑर्डर सेम है. ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालो क्विकली से फॉर द कंप्लीमेंट्री फंक्शन. m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2 इज इक्वल टू 0. फैक्टर बना लो. -2m माइनस 1m प्लस 2 इज इक्वल टू 0. m minus 2 m minus 1 is equal to 0. So your answers are 1 and 2. Fine.
the root of the auxiliary equation is 1 and 2. Therefore, complementary function will be, both are my discrete and distinct. So 1 y plus 1x and f2 y plus 2x is the required complementary function. अब पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे. फाइन, यहाँ पे दो तरफ है तो ये दोनों, ये वाला एक्सप्रेशन दोनों के लिए लिख देंगे हम. फाइन, चाहे तो आप उसे इसके फैक्टर बना लो. इसके फैक्टर यहां से लिख सकते हो आप. इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इन द टर्म्स ऑफ द कैपिटल डी -1 के साथ आप डी प्राइम. फाइन, डी माइनस, ऐसा क्यों लिखा, बिकॉज आपको याद है ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे बनाई थी हमने, बाय सब्स्टिट्यूटिंग कैपिटल डी टू बी द एम, डी प्राइम टू बी 1. तो ये 1 ओवर ये आपका पी आई हो गया. यू कैन राइट एज ए बोथ. क्लियर. अब सबसे पहले चेक करते हैं क्या x प्लस वाई आपका पी आई में है. बिल्कुल है. तो यहाँ पे ये तो आपका केस ऑफ फेलियर जाएगा. क्या x प्लस 2y है इसमें, नहीं है. तो इसका मतलब फर्स्ट वाले पार्ट को मैं बाद में सोल्व करता हूँ. सेकंड पार्ट तो आप डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन कर दो. यहाँ पे d की वैल्यू 1, d प्राइम इज 2, d इज 1, d प्राइम इज 2 और डबल इंटीग्रेशन ऑर्डर इसका कितना है, 2 है. cos ऑफ v dv dv. क्लियर. लेकिन इस x प्लस वाई का केस ऑफ फेलियर दोनों में से किसके साथ है, यहाँ पे 0 बनेगा ना. तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं. क्लियर. तो पहले मैं दोनों को अलग अलग लिख देता हूँ. इसका केस ऑफ फेलियर इसके साथ है. फाइन. अब यहाँ पे मोर देन 1 एक्सप्रेशन है तो पहले इस वाले को अलग से सॉल्व कर लो. d माइनस डी प्राइम, यहाँ तो केस ऑफ फेलियर नहीं है ना, यहाँ पे वैल्यू फिल कर दो आप. फाइन, ये आपका सब्स्टिट्यूशन हो गया. फाइन. अब आप क्या करो, इसकी वैल्यू कितनी, अब यहाँ पे केस ऑफ फेलियर हो गया, ये -1 आउटसाइड. फाइन, विच इज 1 ओवर d माइनस डी प्राइम ई रेज़ टू पावर. अब केस ऑफ फेलियर का रूल लगा दो. यहाँ पे क्या होगा, x की पावर, कितनी पावर है इसकी, जो फेलियर है 1, 1 की पावर 1. फाइन. एंड कोफिशिएंट ऑफ d कितने, 1 फैक्टोरियल इनटू e की पावर x प्लस 1. फाइन. सो आंसर इज -x e रेज़ टू पावर x प्लस 1. इसमें से कोई भी फेलियर नहीं है. यू कैन सब्स्टिट्यूट डायरेक्टली एज आई डिड अर्लियर. सो 1 - 2, 1 - 4, double integration of cos of v. I can take x plus 2y is my v. इसका दो बार इंटीग्रेशन कर लोगे. फर्स्ट टाइम इज अ साइन ऑफ v, सेकेंड टाइम इज माइनस कॉस ऑफ v. तो v की वैल्यू सब्स्टिट्यूशन कर दो. यू विल गेट बोथ pi's. सब्स्टिट्यूट इन द रिक्वायर्ड पर्टिकुलर इंटीग्रल, यू विल गेट द pi पर्टिकुलर इंटीग्रल. फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दो, यू विल गेट द कंप्लीट जनरल सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम. Look at the next one, which is a similar one. Fine. तो पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन तो आप सीधा डायरेक्टली निकाल सकते हो आप. फाइन. और कैरेक्टरिस्टिक्स और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस आ गया. पीआई को लिखते हैं. तो पीआई चाहे आप यहां से लिख लो. यहां से कैसे लिखा जाएगा, एम की वैल्यू कैपिटल डी और डी प्राइम इज माई 1. कैपिटल डी, या तो इसका होल स्क्वायर लिख दो ना, ये होल स्क्वायर हो जाएगा. सो दैट इज माई होल स्क्वायर. क्या केस ऑफ फेलियर बनेगा, y माइनस 2x है कहीं पे, नहीं है. तो देयर इज नो केस ऑफ फेलियर. अब आप इसमें डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन कर दो. d की वैल्यू कितनी है, -2. d विल बी -2 स्क्वायर, डबल इंटीग्रेशन, नहीं ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ द 4 टाइम्स साइन v, dv dv dv, वेयर v इज माई y माइनस 2x. और ये 1 ओवर d है आपके पास. फाइन. इसका एक बार इंटीग्रेशन कर दिया जैसे पहले बताया था. अब यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूशन कर दो बाय यूजिंग, इसका दो बार इंटीग्रेशन करोगे ना कोस का, 2 टाइम्स कोस v का डबल कितना आएगा, पहली बार कोस का साइन हो जाएगा. फाइन. साइन का फिर से माइनस ऑफ कोस हो जाएगा. फाइन. तो ये माइनस ऑफ कोस आ गया. क्लियर. दोनों को ऐड कर दोगे, यू विल गेट द राइट आंसर. अगेन, can you write the auxiliary equations, m cube minus 3m minus 2. इसके रूट्स कैसे निकालोगे, अब तो क्वाड्रेटिक नहीं है तो पहले चेक कर लेते हैं. क्या m इज इक्वल टू 1 इसका रूट है, 1 - 3 0 नहीं है. क्या m इज इक्वल टू -1 इसका रूट है, -1 + 3 -2 0. यस, m इज इक्वल टू -1 इज द रूट. तो आप इसको क्या लिखोगे, m + 1. बाकी कैसे निकालोगे, you can divide them.
फाइन, लेकिन मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में एक शॉर्टकट ट्रिक्स बताई थी ना, राइट द कोफिशिएंट ऑफ द m क्यूब, राइट द कोफिशिएंट ऑफ द m स्क्वायर, राइट द कोफिशिएंट ऑफ द m एंड द कांस्टेंट टर्म। रूट इसका क्या आया? -1। तो पहली वैल्यू को ऐसा लिख दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, -1। ये लास्ट में 0 आना चाहिए, अगर नहीं आया तो आपकी गलती है, और -1 रूट नहीं होगा फिर। -1 इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, दैट्स +1, दैट्स -2, इन दोनों को करो, दैट्स +2, 0। तो ये आपका कांस्टेंट हो गया। फाइन, दैट इज द वैल्यू ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द m, एंड सेकंड इज m स्क्वायर। So 1m square minus m minus 2 is equal to 0। अब आप इसके फैक्टर बना सकते हो ना, m square minus m। फाइन, तो m square minus m से फैक्टर क्या बन गया इसके? m minus 2 m plus 1 is equal to 0। तो आपके फैक्टर क्या आ गए? एक 2 आ गया, एक -1 और एक -1। फाइन, इज इट ओके? नाउ अब आप इसके ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख दो, -1 एंड -1 आर रिपीटिंग रूट, तो यहाँ पे आपने x रह गया, यहाँ पे लिखना, एक x भी आ गया, रिपीटिंग रूट है ना आपके पास, x हो गया। अब pi लिख दो। फाइन, क्या x + 2y इसके साथ है कहीं पे? नहीं, y + 2x है, लेकिन हमें x + 2 चाहिए, बिल्कुल भी नहीं है। आप डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन कर दो, d is my 1, d prime is my 2 होल स्क्वायर, d is my 1, d prime is 2, और ऑर्डर कितना इसका? 3। ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ v, वेयर v इज माई x + 2y। फाइन, तो 3 बार क्या होगा इंटीग्रेशन? पहली बार cos का करोगे तो साइन आएगा, सेकेंड टाइम करोगे तो माइनस cos, और थर्ड टाइम करोगे तो माइनस साइन। तो इसकी इंटीग्रेशन कितनी होगी? माइनस ऑफ साइन, तो साइन के साथ x + 2y की वैल्यू फिल कर दो। If you add them, you will get the required journal solution of the problem. These questions are exercise for you. You can try to solve all these 9 questions. Let me know if you have any doubt. We will see the next, that's a type 3. Type 3 is whenever the right hand side is my polynomial. How we can find the journal solutions again with the help of the easiest way, we will see in our next class. Till then, you can share this video, like and comment on the videos. Best of luck, students. Happy learning always.